This is a very interesting case. Actually, this case, the person maybe around 35 to 40 years old. So he is my courier agent. So generally, people from outside they take their medicines through courier. So he always takes my courier. So around 6 7 packets. Sometimes it is 15 to 20 packets a day. So every day we have some or other conversation. So he has so many patients like his brother and sister-in-law and their children and so many people. And he sometimes brings them and take medicines just like that. So one day he came with his one of his nephews who was having some problem. So after taking his medicine, he told, Mm, sir, please give me medicine for my fungal infection. So this fungal infection is more centered around the folds of the joints and especially inside near the groins. And it was spread like anything, and it itches and sometimes it bleeds also. So what happened? He had been this problem so many years. And 1 year back, he went to a dermatologist and he gave some medicine. It was cured. And again, after 1 year, it started. So he took medicine from some ointment from the local chemist, whose shop is nearby his own shop. What happened when he came? I asked him, Ki, how are you managing? Oh, it is itching heavily and sometimes it bleeds also. And the bleeding is so much that it spoils my undergarments. Then I asked him, how do you manage them? How, just like that, I put some quadriderm ointment given by the local chemist. He is my neighbor. Then I asked, did you take, have you taken any treatment? I took treatment last year. And he showed me, he carried all the papers with him. And so last year I took medicine and it was okay. Again, after 1 year, it started. Then I asked him, once you're managing with quadriderm, then why you thought of showing me today? Then he told actually, for my nephew, I should come for medicine. Today my wife told, today you go and show doctor because since so many months the itching is continuing and you are troubled, not able to sleep in the night. So he forcibly put the papers, the files of that last dermatologist, and so I brought. I told him, once you're having the problem so much, why didn't you visited that same dermatologist from which you got relief before 1 year? He told, actually, I don't have time, because actually उसका जो बोलने का the way he expressed, समय कहाँ है डॉक्टर साहब, टाइम मिलता कहाँ है, इतना काम. Actually, it happens, I start from home mornings around 10 o'clock and come back at night 12 o'clock. So there is no time at all. समय ही नहीं मिलता है डॉक्टर साहब. सुबह जाता हूँ 10 साढ़े 10 बजे निकलता हूँ. आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक क्या है. पहुँच के काम लग जाता है. लड़के वड़के काम करते नहीं है, उनको डांट वांट के काम करवाते हैं. रात को 12 बज जाता है साहब. आके किस तरह से खा खू के ये खुजली भुजली करके सो जाते हैं. सुबह 5 बजे जगना पड़ता है. अगेन आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग 5 o'clock because if I don't get up morning in the 5 o'clock, my wife, she also makes food for me at night, and she sleeps. She becomes a bit dull in the morning, become a bit lazy in the morning, and she doesn't get up. And if she doesn't get up, and if I also don't get up, then the children will be late for the van. The van they are going to the school, and the van the person comes exactly at 6:30. अगर आप ready नहीं, if you're not ready, the children are not ready, they'll go. The van will go because the van person he has to fetch other kids also for the school.
So ultimately, I have to again drop the child to the school, and we are paying 2,800 per month for one child, and unnecessary again I have to put petrol in my motorcycle and drop the child to the school. Hence, I get up at 5 o'clock, get the child ready, prepares breakfast, and when the child goes off, my wife gets up and she prepares breakfast for me. So again, I go to the office and the same routine continues. So there is no holiday. We don't have any holiday. With a courier, you have to be very ready. Every day you will be ready. You have to be on work. So I asked, how do you manage then? चलता है सर, क्या करें सर, काम तो करना ही है, आई हैव टू वर्क. तो फिर मैं बोला इसको लेके मन में कोई चिंता ही नहीं, कंसर्न रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम. क्या सोचे सर आप बताइए, आप सोचने का फुर्सत ही कहाँ है. देयर इज नो टाइम टू थिंक. You the 24 into 7 you were in work. There is no time to think. सोचने को मौका कहाँ मिलता है, टाइम कहाँ मिलता है सर. अच्छा. So here, actually there is no concern, and the motive for coming to the medicine is not his and his wife's idea, and to continue somehow managing with Quatitum, the local antifungal cream. So I thought of, in the case taking, I should change my plan. So I went into understanding the behavior of the person. मैं बोला भैया आपका मिजाज कैसे रहता है, how is your temperament? Then he told, मिजाज तो ऐसे डॉक्टर साहब ठीक रहता है, बस आई एम ओके. बट जब पेमेंट नहीं आता, व्हेन आई डिडंट गेट माय पेमेंट, देन दैट टाइम थोड़ा मूड खराब हो जाता है. आई बिकम माय मूड्स बिकम बैड. क्लाइंट्स पैसे नहीं देते हैं, डॉक्टर साहब काम कर लेते हैं. आई हैव टू पे टू माय वर्कर्स, टू द कोरियर कंपनीज, एंड क्लाइंट्स किसी के पास 20-20 हज़ार रुपये पड़ा रहता है, देते नहीं है, मांग मांग के थक जाते हैं. डॉक्टर साहब इनके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो फिर काम नहीं देंगे. तो बस सर, तभी मूड खराब होता है, वैसे ठीक रहता है डॉक्टर साहब. तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है. And this was the case, and here I thought of giving a remedy. And I gave a remedy. I selected the remedy. So I told, you take this remedy and we'll see after 1 week. And don't apply soap, because soap sometimes, washes the fats out of the skin, which generally protects our skin from the bacteria, the fungus. So he told, अरे डॉक्टर साहब 13 साल की उम्र से मैंने आज तक साबुन नहीं लगाया. Since my 13 years of age, I have not applied soap. मैं ब्राह्मण हूँ, I am a Brahmin. And जब मैं गुरुजी के पास कर्म कांड सीख रहा था, when I was learning the rituals, the Brahmin things, that time गुरुजी ने बोला था साबुन नहीं लगाना चाहिए, you should not apply soap, being a Brahman. So, and since then I have not applied soap. तो कैसे मैनेज करते हो? अरे कुछ नहीं, चलता है डॉक्टर साहब. तो suddenly I asked him, actually that time I already given the medicines, but I thought why not to continue the case taking, because he giving some information. So मैं उसको पूछा, भाई तुम ब्राह्मण होकर कैसे भाई कोरियर में आ गए? अरे डॉक्टर साहब बड़ा कहानी है. मैं पुजारी था यहाँ, आई वॉज ए पंडित जी एंड सेंट इन ए मंदिर. पर वो पंडित मंदिर में ना प्रधान लोग होते हैं. आप डॉक्टर साहब, आप एक बताया उसने, नारायण बलि जानते हैं? तो एंड ही वाज टॉकिंग, ही वाज सिटिंग लाइक दिस, डॉक्टर साहब आप नारायण बलि जानते हैं? सुनने वाला, मैं तो नहीं जानता हूँ भैया, मैं तो होम्योपैथी बड़ी मुश्किल से जानता हूँ. तो नारायण बलि में जब किसी के आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, somebody dies accidentally, then for the peace of his soul we do a ritual, that is नारायण बलि, और काफ़ी बड़ा पूजा होता है. तो हमारे प्रधान ने बोला भाई 50% आधा पैसा हमें देना पड़ेगा. तो हम तो चढ़ गए, काम हम करेंगे, तेरे को क्यों पैसे देंगे भाई. उस दिन से हमने काम छोड़ दिया, हमने बोला अपना ही काम करेंगे. तो हमने कुरियर का काम किया डॉक्टर साहब, और कुरियर का काम धीरे धीरे हमने पहले ब्लेज प्लास में काम किया, ब्लेज प्लास बंद हो गया
तो हम अपने अपने धीरे धीरे करके DTDC फर्स्ट फ्लाइट ट्रैक ऑन इन लोगों की एजेंसी ले ली और हमने शुरू कर दी। बस काम चल रहा है ठीक ठाक रखता। तो मतलब दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द केस एंड इट वाज even after giving the medicine the person gave clues and the way the person was explaining. And when you go through the case, you'll find so many, what you can tell, stages. Like he came with his wife's persuasion. So actually, our mind will take us to different rubrics. But actually, see, homeopathy is not about rubrics. Or case taking is not about making rubrics and finding any remedy after repetition. No, not at all. Even a single rubric can lead you to the remedy and even multiple rubrics can fail you. तो थोड़ा थोड़ा हम स्टेट के बारे में इस केस को हम डिस्कशन बता किए हैं, तो सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। कहीं कोई डाउट हो तो जरूर बात करिए, ठीक है? थैंक यू। अब इसको इतने साल से हो रहा है, पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को गया, ठीक है, अब वहाँ उसके बाद फिर छोड़ दिया, उसको आराम हो गया, तो फिर क्वाड्रेटम लगा रहा है, पड़ोसी आसपास में कोई मेडिकल स्टोर है, उसको जाके बताया होगा, तो उसने बोला क्वाड्रेटम लगा ले, तो उससे उसको ठीक हो जाता है। अभी भी जो आया है, अभी देखो, ये नहीं ये पहली बार आया, ये तीसरी बार आया। उसकी थर्ड टाइम जब उसकी जो भी रिलेटिव है जब गाँव जा रहा था, 2-3 महीने की दवाई चाहिए था, तो उसकी वाइफ ने बोला, यार तुम भी दिखा गया जो डॉक्टर साहब को, ये तुम्हारा भी, उसको पता है ये रात भर कुछ भी करता होगा। तब उसने उसकी पर्चा वर्चा डाल दिया, तो आके दिखा रहा है वो। आपने देखा उसकी जो नेचर, टोन, बात और कहाँ इंडिकेट करता है? स्माइलिंग ड्यूरिंग केस टेकिंग, फिर तो बेलाडोना हो गया। ये हमारे पास जो रूब्रिक है, लाफिंग स्पीकिंग मैन। हाँ क्या? हाँ, ये चीज मतलब आप लोग भूल गए लगता है। मनी क्या होता है? मनी आपकी नेसेसिटीज को बाय करता है। मनी इज इक्वल टू आपकी नीड, बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। आप समझ गए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मनी में आप अपनी चीजें जरूरत की खरीदते हैं। आप समझ गए, मनी कभी आप ये नहीं बताओगे कि मेरे पास 10 लाख है। अगर बताएंगे भी ना, वो दैट इज नॉट मनी, दैट इज वेल्थ। आप समझ गए ना? मनी क्या बोलोगे? तेरे पास पैसे है क्या? देना यार, 10 रुपए दे दे। ज्यादा भी होगा, कितना होगा? तेरे पास पैसे है क्या? चल 2000 रुपए दे दे। कभी किसी को नहीं बोलोगे 1 लाख दे दे पॉकेट से निकाल के। कभी बोलते हैं हम मार्केट में गए हैं सामान खरीदने के लिए, कार्ड छोड़ दो, आप कैश की बात करो। आप हेलो, कितना पैसा मांग सकते हो आप अपने दोस्त को? इवन अपनी वाइफ को भी कितना मांग सकते हो? 500 का, 500 भी नहीं मांगता कोई, उससे नीचे वाले 200 का छुट्टा है क्या? ऐसे बोलते नहीं। दिस इज मनी। ये बेसिक चीजें हैं जो भाई चाहिए आपको। पर जहां बिजनेस होता है, आदमी हमेशा प्रॉफिट देखता है कि 10 लगाऊंगा 15 है। लॉस तो ना हो, चलो प्रॉफिट भी नहीं हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। नहीं तो चलो कुछ बिजनेस देखोगे ऐसे, क्या उसको बोलते हैं, ब्रेक इवन में चलता है। जितना आया, जितना गया, जितना आया, चलता रहता है। लॉस होगा तो बंदा बिजनेस बंद कर देगा, है या नहीं है? तो ये दोनों में डिफरेंस बहुत है। इज इट क्लियर? मनी का जब कब जिक्र होगा? जब इंसान के पास चीजें कम होगी। हमेशा आप कभी भी, आपके पास अगर 5000 होगा, आप पड़ोसी से कभी 2 रुपये मांगेंगे नहीं। जिक्र कब होगा? जब आपके पास चीजों की लिमिटेशंस होंगी, कम हो, मतलब आपको लगेगा कि 5000 मेरे को कम पड़ रहा है, ज्यादा नहीं है। बिजनेस में क्या होता है? आप कहीं ना कहीं ज्यादा में हो। आप बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा में है, या तो बराबर में है। चलो ज्यादा भी नहीं है तो बराबर, और जितना भी है आप लॉस नहीं करोगे उसको। बिजनेस, आदमी बिजनेस करता है, इसमें कोई चीजें नहीं खरीदते हो आप। हर चीज में मैं बिजनेस कर सकता हूँ। आपको मैं एक काम आपसे निकाला, आप एक काम मेरे से निकाले। और मनी में तो सीधी सीधी चीजें चाहिए मेरे को। जैसे हम कैलकिरिया फ्लोर का मनी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल कैंटो देखोगे, एंजाइटी मनी मैटर्स में कैलकिरिया फ्लोर होता था। धीरे धीरे जुड़ गए दवाई, ब्रायोनिया भी जुड़ गया, और भी दवाई जुड़ गए, क्योंकि कैलकिरिया फ्लोर को सबसे ज्यादा अपनी जरूरत की चीजों की चिंता होती थी। ये चावल कैसे आएगा, दाल कैसे आएगा,
दूध कैसे आएगा, चीनी कैसे आएगा, समझ गए ना, जरूरत जिसके बिना वो रह नहीं सकता है। वांट उसकी बात की है ना, तभी तो जाता है वो, क्योंकि वो अपनी बीमारी को, अपनी स्टेट को रोक नहीं पाता है। सल्फर रोक लेता है, ब्रायोनिया रोक लेता है। ब्रायोनिया सल्फर में एक बढ़िया चीज है, सल्फर तो बहुत पहले से रोक लेता है क्योंकि वेल्थ होता है उसके पास है। जैसे जैसे चीजें, जैसे मेरी बीमारी बढ़ रही है तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लूंगा जाके इस पॉइंट पे, समझ गए ना। अब किस पॉइंट पे रोकेंगे अलग बात है। हेलो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबकी अलग अलग पॉइंट होता है जहां वो अपने आप, क्योंकि एक इंडिविजुअल है अपने, किसी के लिए 5,000 रुपये गरीबी है, आप समझ गए, किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी गरीबी है, और किसी के लिए 10 रुपया गरीबी है। अलग अलग होता है नहीं। हाँ सर, 2800 देना पड़ता है, सही बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक आगे भी सोचो ना, एक नहीं, एक और आगे सोचो। एक्चुअली क्या होता है, जब केस चलता है हम फिर एक बिजनेस में चले गए ना, हम लोग लॉस में गए, पक्का गए, आपने गए, मैं भी सोचा, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि कितने लोग इस लेवल के आए, बीवी को सोने देते हैं और खुद उठ जाते हैं, इस लेवल के। भाई हम कर सकते हैं, हमारे से ऊपर वाले और कर सकते हैं, या बीवी को खुश रखना चाहिए। यहाँ खुश वाली तो बात है ही नहीं, वो भी यूपी का आदमी है, बिहार का आदमी है, मैं बता रहा हूँ, चलो थोड़ा ऊपर आ जाए, दिल्ली वाला थोड़ा बीवी को खुश रखेगा। इस लेवल का आदमी है जो रात को 12:30 बजे काम करने आया और सुबह 5 बजे अपनी बीवी को उठा नहीं रहा है। बोलता बीवी आलस कर देती है तो बच्चे तैयार होने में लेट हो जाते हैं, तो बहन छूट जाती है, तो 2800 लॉस होता है। लाइन समझे आप? इसके क्रक्स क्या है, इस सब चीज की वजह से इसको उठना पड़ता है जो रात को 12:30 बजे दिन भर काम कर गया है। और बीवी कितना भी काम कर ले, घर में टाइम तो मिल ही जाता होगा, हाउसवाइफ है, नौकरी नहीं कर रही है, आप समझ गए ना। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज को ये ऊपर आ जाता है। यू हैव टू टेक द प्रीडोमिनेटिंग थिंग। ये सब के बावजूद भी ये अपनी बीवी को नहीं उठाता है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, यार ये तो हमसे मान हो गए। एक कुरियर वाला आदमी है जो 2 थप्पड़ मार के उठा देगा। चलो, कभी अपने घर में सोया तूने? इधर आके सो गई, मेरा इतना लॉस हो गया। ये अपनी बीवी को नहीं उठाता है, तो दैट इज ओपीएम। कैसे नहीं, कंटेंट तो कहीं दिखा ही नहीं इस केस में, कहाँ दिखा? वो फायदे के बारे में बात कर रहा है, नुकसान के बारे में बात कर रहा है। हाँ, इसको लेके परेशान नहीं है, लेकिन आ तो गया ना। तो ओपीएम में क्या है, ओपीएम किसी ने भेजने में नहीं आता है, खुद डिसाइड करता है, एजाइल होता है। आप समझ लीजिए ना, ओपीएम का हमारे पास एक रूब्रिक है, एजिलिटी ऑफ माइंड। ये देख रहे हैं, इसमें ओपीएम है। सबसे पहले ओपीएम कॉफी या 2 ही दवाई था। तो एजिलिटी क्या होता है? एजाइल माइंड बोलते हैं ना हम लोग, ये हैज एन एजाइल माइंड है, एक्टिव, एक्टिव से भी आगे है? हाँ, समझ, इमीडिएट एक्शन लेता है, राइट एक्शन लेता है। क्विक टू एक्ट अलग है, क्विक टू एक्ट में सिर्फ एक्शन होता है, सोच नहीं होता है। एजाइल में सोच ज्यादा होता है, एक्शन तो होता ही है। क्विक टू एक्ट में दिमाग कम चलता है, बॉडी तुरंत एक्शन ले लेता है। इसमें दिमाग चलता है, बिना एक्शन के भी दिमाग चलता है। आप समझ रहे ना, जो रिएक्शंस होती है ना, सोच से चलती है, इसकी दिमाग चलती है इसका। अगर मेरे को लगा कि आज दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए, खत्म। तो ओपीएम बहुत एजाइल होता है। ओपीएम कॉफी 2 दवाई होते थे, दे आर वेरी एजाइल। पर ये एजाइल नहीं है इतना। एजाइल होता तो जैसे साबुन लगा, वो कुछ क्या बोलते हैं, क्वाड्रिग्राम नहीं लगाता, समझ में आ जाता है उसको क्वाड्रिग्राम नहीं लगाना चाहिए। और उसको उसने रीजन भी दिया, ऐसे नहीं है, उस बंदे ने हर चीज की रीजन देता है। क्या बोला उसने कि फुर्सत कहाँ है जिसकी मैं दवाई लेना हूं, काम से। हाँ, ये बात उसने बड़ी लाइटली बोला, उसने लाइटली बोला ना। मैंने बोला भाई इसको लेके तुम बोले सब काम से फुर्सत कहाँ है इसके बारे में चिंता करो। हाँ, पेमेंट नहीं आता तो चिंता होती है, लोगों के पास पेमेंट ड्रॉप पड़ा हुआ है, वो नहीं आता तो टेंशन होती है मुझे। इसको कहाँ टेंशन है, वो क्वाड्रिग्राम लगा लेते हैं, तुरंत आराम हो जाता है, फिर देख लेते हैं।
आदमी इंसान हमेशा सहूलियत के हिसाब से काम करता है, अपने आप को कभी तकलीफ में नहीं डालता है। और इस बंदे ने इतने अच्छी वाली काम, क्या उसको बोलते, इतनी कंफर्ट जोन में रह के, कालका जी मंदिर में पुजारी था, सोचो कालका जी में कमाई कितनी होती है, और उसने उसको छोड़ के कुरियर का काम किया। और जबकि उस कुरियर में आज डिलीवरी बॉय ज्वाइन किया था, क्योंकि इसका कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, एक पंडिता ही पढ़ा हुआ है, 10th 12th तो पढ़ा ही नहीं उसने, तो कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो डिलीवरी बॉय काम किया था। अब डिलीवरी बॉय से मैनेजर हुआ, मैनेजर होके अपनी कंपनी खोला उसने, मतलब अपनी एजेंसी खोला। सर ये जैसे तो कंसेंसस है बहुत ज़्यादा और हार्ड वर्किंग भी है और अंदर से थोड़ा मतलब गुस्से वाला भी है अंदर से उसने, हाँ, जिस तरीके से दिख रहा है तो और गुस्से तो है, क्योंकि उसने बोला ना खुंदक में छोड़ दिया, तो गुस्सा तो है यार, अपना ही नुकसान किया उसने। एक्सपो में क्या इग्निशिया इतना बात नहीं करेगा ये सब चीज के बारे में। और इग्निशिया कहीं ना कहीं देखो, इग्निशिया की जितनी रिएक्शंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्लोज रिलेटिव्स के आसपास चलता रहता है, क्योंकि उनसे ज्यादा परेशान होता है। इग्निशिया को एनवायरनमेंट से ज्यादा परेशानी नहीं होती है। हाँ, खुंदक आता है, इसलिए इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में है, टॉलरेट नहीं है सपोर्ट। मैं देख रहा हूँ यार साहिल के साथ गलत हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, पर मेरी रिएक्शन नहीं होगी, अंदर से मैं कुड़ूंगा, अंदर से मेरे कुड़न होगी, क्या यार इसकी कोई गलती नहीं है यार, इसको कोई परेशान कर रहे हैं लोग, और इसकी रिएक्शन है, इसने खुंदक में आके छोड़ दिया। अगर इग्निशिया होता ना, वो थोड़ी सी बियर करता, और अगर होता भी है, मंदिर का पुजारी है या प्रधान है, वो भी क्लोज लोगों में है, अगर इसके खिलाफ कोई चीज होता थोड़ा यील्ड कर जाता है, वो थोड़ा काइक माइल्डनेस बियर्स, इतना बियर कर ही नहीं, उसने छोड़ दिया, उसने खुंदक में आके छोड़ दिया उसने। नक्सवामी का भी एक हो सकता है एक पॉइंट में, पर नक्सवामी का अपने बीवी को उठा दिया है, बीवी की हिम्मत नहीं होगी कि वो सो जाए और नक्सवामी का काम करे, वो भी उसका कोई काम नहीं है। नक्सवामी का अपना काम करने के लिए फिर भी उठ जाएगा सुबह, चाहे 3 बजे उठे, चाहे 2 बजे उठे, चाहे रात भर नहीं सोए, क्योंकि खुद का काम है उसका, उसकी ग्रोथ है। तो थोड़ा सा हम पकड़ नहीं पा रहे। वैसे डॉक्टर साहब ने सही दवाई बताया, डॉक्टर प्रीति ने, ये सल्फर, बहुत सही बताया आपने, आप रूब्रिक आप नहीं पकड़ पाए, इसीलिए मैं आपको केस दिखा दूं कि छोटे छोटे पॉइंट में हमारा ये दिस इज द पहला रूब्रिक। इस केस में मैंने एग्योटिज्म किया था, कितनी ईगो है इसके अंदर, ईगो टू परफॉर्म, ईगो टू टेक केयर, ईगो टू रिएक्ट। अब देखो ना कितना ईगो उसके अंदर है। वो खुंदक गुस्सा नहीं है, वो ईगो है, ये काम नहीं करूंगा मैं, कि ये मतलब पंडिताई का काम है, फायदा है इसमें, लेकिन मेरी ईगो अलाउ नहीं करेगा। अगर इंजस्टिस है, वो इंजस्टिस था ना, हम काम करके आए, 50% तुम्हें दे दे, हम काम करके आए तुम्हें 50% दे दे, सवाल ही नहीं उठता है, समझ गए ना। दैट इंजस्टिस हैज ए रिएक्शन, दैट इज सल्फर, इन सल्फर रिएक्ट्स टू इंजस्टिस, इग्निशिया यील्ड्स टू इंजस्टिस। इग्निशिया को अगर कोई चीज खराब लगा, बुरा लगा, वो उसको थोड़ा सा और टाल लेगा, सह लेगा, करेगा, ऐसे नहीं कि इग्निशिया नहीं करेगा, हो सकता है बहुत लेट में करे, लेकिन पहले कोशिश करेगा उसको सुलझाने के लिए। चलो छोड़ो यार, एक बार बोल दिया प्रधान ने, चुप रहने में फायदा है, अब फायदा वर्ड पर आप सुनिए। सेल्फ इसकी मेरे को बहुत इसके पॉइंट्स आप देखो ना, क्योंकि पहले मेरे को इसी को फ्रिवलस लगा, फ्रिवलस में भी सल्फर है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट रूब्रिक। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसकी काम को जब उसने स्पेसिफाई करा, जब उसने बोला ना काम से फुर्सत का है मैं दिखाऊं अपनी बीमारी, तो काम को जब हमने उसके बारे में धीरे से बोला ना, इतना क्या काम करते हो यार, तो उसने स्पेसिफाई किया, रात को 12:30 बजे आता हूँ और सुबह 5 बजे उठता हूँ, अगर नहीं उठूंगा बीवी आलस कर देती है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब आई वॉज वेरी क्लोज टू कॉकुलस दैट टाइम, कि कॉकुलस ऐसे कर सकता है, इस लेवल का केयर कॉकुलस का हो सकता है, कि खुद को जगा के बीवी को सोने देता है कि चलो यार
और कोई रिएक्शन नहीं है। सल्फर का थोड़ी बहुत रिएक्शन होता है, इधर नहीं था, ये बहुत बढ़िया सल्फर है इसे। और आप समझ गए उसको, और खुद काम कर देता है। उस काम में भी अपनी फायदा नुकसान देख रहा है, वहां भी फायदा नुकसान है कि 2800 रुपये जा रहा है, अगर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाऊंगा तो मेरा तो 2800 बेकार गया ना, फिर बाइक में और पेट्रोल लगेगा। तो यहां भी फायदा नुकसान दिखता है, सल्फर भी फायदा नुकसान दिखता है। और हर चीज देखो आप उसका, कितनी बचपन से आज तक साबुन नहीं लगा, फिर वो रिलीजियस फेथ होता है सल्फर का। मतलब उसके अंदर बढ़िया था, ईगो इतना ही बढ़िया था, साथ में केयर बहुत था। ईगो था, पूरा ईगो था, पूरा शुरू से लास्ट तक। कैसे बोलता है, कौन सा बोला, कौन सा बलि बताया उसने? नारायण बलि। नारायण बलि जानते हैं आप? मेरे को क्या, मेरे से ऊपर हो गए ना वो, इसका मतलब तुम कितना भी जानते हो, ये नहीं जानते। मतलब तुम होम्योपैथी पढ़ा लो, दे दो दवाई, सेमिनार कर लो, लेकिन नारायण बलि नहीं जानते हो तो। मतलब मुझे छोटा नहीं किया, लेकिन वो अपनी ईगो बता दिया। ईगो में दूसरे को छोटा नहीं करता है, ये बताता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम अपनी इस फील्ड में कुछ भी हो, पर मैं भी हूं। कि नारायण बलि करते थे हम, इसमें मतलब नारायण बलि मैं भी पहली बार सुना भाई, नारायण बलि होता है करके। मतलब महामृत्युंजय तो सुना हो मैंने, जो काल सर्प सुना होता है, ये सुना नहीं था मैंने। आप समझ रहे उसको, तो अपनी ईगो को उसने बढ़िया से प्रेजेंट किया, साथ में केयर भी बहुत लिया। सर ये ईगो जैसे आपने मेडिसिन दी, उससे पहले दिखी? बहुत दिखी यार, इतनी बड़ी ईगो दिखी यार। तुम अपनी वाइफ को, यही तो ईगो यार। ईगो का मतलब तुम बुरे क्यों मानते हो? हम लोग ईगो को बहुत बुरा मान लेते हैं। कैसे बुरा मान सकते हो यार? इफ एवरी इंडिविजुअल हैज ईगो, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, इंसान जिस दिन पैदा होता है रोता है, रोने का कारण ईगो है। अगर रोना नहीं निकलता तो बीमारी हो जाती, सब जानते हैं ना, कुछ ना कुछ उसको क्या उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, नहीं तो ऑटिज्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इस टाइप की जितनी बड़े बड़े बीमारियां होती है। सर तो पीडियाट्रिशियन जानते होंगे। तो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बाहर आता है वो ईगो, पहले वो रोना मतलब वो ईगो है कि आई कैन सर्वाइव अलोन, आई डोंट नीड माई मदर सेल्फ। अराइवल करता है ना, अराइवल टिक करता है कि आई कैन सर्वाइव अलोन नाउ, भाई मुझे तो किसी की जरूरत नहीं। पहले क्या होता था, 9 महीने किसी और की सर्वाइवल में उस पर रहता था ना भाई, माँ की हर चीज, माँ की हर चीज, माँ की हर चीज। माँ जैसे सोचे कि मेरे को भी वैसे सोचना पड़ेगा, माँ अगर दुखी है तो मेरे को भी दुखी होना पड़ेगा। यही होता था ना। बच्चा क्या करता है, अंदर रह के, अब हमें नहीं पता है क्या, पर 9 महीना तो यही सोचता होगा ना भाई, अगर माँ ने हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया तो उसने गुस्सा कर दिया, और रोई तो ये भी रोना शुरू कर दिया। बाहर आएगा तो इंडिपेंडेंट ना, भाई तू रो, मैं अपना मस्ती करूं। तो ये जो ईगो है, ये आप आते ही आप अपने रजिस्टर कर लेते हो। तो ईगो का मतलब क्या है कि यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म, आप समझिए उसको। तो ये भी सल्फर का तो यही ईगो होता है। पूरी की पूरी सल्फर को देखो ना, सल्फर का गुस्सा क्यों कितना बढ़िया है देखो, एंगर ऑल्टरनेटिव विथ क्विक रिपेंटेंस, मतलब समझिए आप, गुस्से के बाद चीजों को ठीक करने की ईगो, ताकत सबकी नहीं होती है। अगर मैं गुस्सा होता हूँ 3 दिन लगाता हूँ ठीक होने में, तो मेरे अंदर ईगो नहीं है वो वाली। अरे आपको, पर सल्फर अकेला चीज दवाई है, और भी दवाइयाँ होंगी कुछ हैं, मतलब उसमें ईगो नहीं होगा, और कोई एरिया में जाएगा। क्रोकस का अलग है। क्रोकस का क्यों होता है, मैंने पढ़ाया था एक बार, क्रोकस पढ़ाया था ना एक बार, क्रोकस का क्रोकस का क्यों होता है? क्रोकस की रिश्तेदारी चाहिए, भाईचारा चाहिए, हक चाहिए। क्रोकस को बहुत हक चाहिए, मैं बताया तो था, उसकी और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को प्यार चाहिए। प्यार बंद कर दो, क्रोकस मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। सल्फर में क्या होता है, द कैपेबिलिटी टू मैनेज सेल्फ आफ्टर एंगर। एंगर के बाद आदमी हिलता, डिलीवरी थोड़ा इधर उधर हो जाता नहीं, मैं भी होता हूँ, आप भी होते, सब जानते हैं। एंगर के बाद मन नहीं करता इससे बात करने के लिए, चाहे कितना भी क्लोज हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बीवी हो, बच्चा हो, नहीं देखना यार इसको, ऐसे होता है नहीं। पर सल्फर के पास एबिलिटी होता है एकदम से चेंज करता, क्विक, इमीडिएट रिपेंटेंस है ना, क्विक रिपेंटेंस है। यही अकेले दवाई है। अभी तो आगे बहुत सारे, पहले यही होता था एंगर। अभी 11 में भी 3-4 ही होंगे, क्रोकस, लाइसिन, मेजेरियम, सल्फर, ओलिएंडर, सिम्पाइटम, में धीरे धीरे आ गए।
मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं उसको? कि इसका मतलब अपने आप को बदल सकता है जल्दी, कि अभी गुस्सा हुआ, अरे यार गलती हो गया, चल पिक्चर दिखाता हूँ तेरे को, चल तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ, चल एक ट्रिप करके आते हैं, इतना इमीडिएट 2 मिनट के अंदर। आप समझ गए कि तुम्हें एबिलिटी होती है, अब सब कुछ एक्स्ट्रा होता है सल्फर में, ईगो, अबंडेंस, वेल्थ, परसिवरेंस, होप, सब कुछ ज्यादा ही होता है ना। ऑप्टिमिस्टिक भी तो वही होता है ना, कितने भी खराब सिचुएशन से अच्छी चीज निकालना है।